Hello and welcome everyone to my YouTube channel Commerce Studio by Priya. So today I will discuss with you the rent-free accommodation, short form RFA, for the tax purpose. RFA is the major part of the salary, and today we will discuss about its taxability, valuation along with the examples. So let's begin. And these are the learning objective for this lecture. We will get to know about the meaning of RFA, eligibility and scope, valuation method, rules for government as well as the non-government employees with practical examples. So what is rent-free accommodation? Rent-free, there is no rent. Employee is getting the accommodation but he didn't need to pay any rent. The rent is paid by employer, or sometime the accommodation is owned by the employer, so there is no need to pay rent to anybody. So accommodation is provided by the employer to the employee free of cost. So employee is getting the benefit from the employer due to the employee-employer relationship. So that's why RFA will be included in the income from salary, and it is regarded as the taxable perquisite under section 17 subsection 2 of income tax. RFA किसको मिलता है? Employees generally. That's why we are discussing the RFA and that's why it become the part of the salary. So RFA एम्प्लॉयज़ को मिलता है, दे आर एलिजिबल. कंसल्टेंट और पार्टनर्स को नहीं मिलता है. एकोमोडेशन में भी फर्निश्ड और अनफर्निश्ड. फर्निश्ड मीन फर्नीचर भी प्रोवाइड किया जा रहा है. एम्प्लॉय ने सिर्फ और सिर्फ अपनी नेसेसरी थिंग्स लेके आनी है. एकोमोडेशन कैन बी ओन्ड और लीज्ड. एकोमोडेशन एम्प्लॉयर का खुद का भी हो सकता है और वो हायर करके भी एम्प्लॉय को दे सकता है. Government versus non-government employees, there is a different rules for calculating the taxable value for government as well as the non-government employees. For government employees, it is valued as per the license fees fixed by the government. The government is generally providing the accommodation to its employees in the form of flats, houses or the quarters, and the license fees is fixed by the government on yearly basis and it is revised over the period of time regularly. So license fees fixed by the government, taxable for government employees. Non-government employees taxable as the percentage of salary and which is based upon the city or population. Then cost of furnishment, it is taxable for both government as well as the non-government employees. अगर furnished accommodation मिल रहा है वो दोनों के लिए taxable है, चाहे वो government employee है चाहे वो non-government employee है, और रूल भी सेम रहेगा. That is taxable at the rate of 10% पर एनम कॉस्ट ऑफ फर्निशमेंट. जितने कॉस्ट का फर्नीचर उसने लगा के दिया है उसका 10% पर ईयर के हिसाब से RFA की वैल्यू में ऐड हो जाएगा टैक्सेबल पर्पस के लिए. और अगर फर्नीचर हायर किया है एम्प्लॉयर ने तो हायर चार्जेस. दोनों के लिए सेम रूल, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे नॉन गवर्नमेंट है. कॉस्ट ऑफ फर्निशमेंट. देन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए दिस इज़ द ओल्ड रूल बिफोर द फाइनेंस एक्ट 2023. तब होता था 7.5, 10 और 15% ऑफ सैलरी. 7.5% अदर सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है. 10 लाख से ज़्यादा वालों के लिए 10% और मेट्रो सिटीज़ के लिए 15% ऑफ सैलरीज था. लीज्ड एकोमोडेशन अगर हायर बाय एम्प्लॉयर होता है तो लोअर व्हाट rent paid by employer or 15% of the salary, whichever is lower will be taxable RFA under the head salary for the employee. Now comes the Finance Act 2023 जो अब लग चुका है and it is applicable from September 2023 onwards. यहाँ पे चेंज हो गई है परसेंटेज 5, 7.5, 10%. हायर लिमिट 10 हो गई है 15 से. तो 40 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है 10% ऑफ सैलरी. 15 से 40 के बीच में, 40 से कम 15 से ज़्यादा 7.5% और 15 लाख से कम पॉपुलेशन में 5% ऑफ सैलरी है. और अगर एकोमोडेशन हायर बाय एम्प्लॉयर है आफ्टर 2023 तो सैलरी 10% लेंगे, 15 नहीं लेंगे हम. 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज़ लोअर. यहाँ ख़त्म नहीं होगा, एडिशनल भी है. एडिशनल कैसे है कि नया रूल ही आया है. अगर एम्प्लॉई एक ही घर सालों दर सालों के लिए यूज़ करता है, 1 ईयर से बियॉन्ड, 1 ईयर बियॉन्ड यूज़ करता है, मल्टी ईयर ऑक्यूपेंसी है, तो हमने एडजस्टमेंट करनी है वैल्यू में. तो सेम अकोमोडेशन चाहे लो ओन्ड है लीज्ड है, अगर एम्प्लॉई 1 साल से ज़्यादा उसका यूज़ करता है तो उसके लिए एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट होगा. दैट टैक्सेबल वैल्यू जो है सब्सिक्वेंट ईयर्स की लोअर होगी, जो वैल्यू हमने एज पर दी रूल्स
5, 7.5 10% ऑफ सैलरी करके लगाई है, और फर्स्ट ईयर की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द एडजस्टेड वैल्यू। एडजस्टेड वैल्यू कैसे आएगी, फर्स्ट ईयर की वैल्यू इनटू मल्टीप्लाई बाय CII कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ईयर। तो जो एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा जो पहले साल की टैक्सेबल वैल्यू थी और द वैल्यू कंप्यूटेड करंट ईयर के लिए एज पर द टेबल, और हायर है तो वो परसेंटेज, विच एवर इज लोअर विल बी दी टैक्सेबल वैल्यू फॉर द RFA फॉर द एम्प्लॉई। फर्स्ट ईयर का मतलब होगा 23-24, क्योंकि 23-24 से लगा है ना रूल, तो पहला साल क्या होगा 23-24 या उसके बाद वाला साल, उससे पहले वाला नहीं। सैलरी का पर्पस क्या होगा RFA के लिए, जब भी हम सैलरी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे भी सैलरी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एवरीवेयर सैलरी हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग, उसमें क्या क्या आना है क्या क्या नहीं आना है। RFA की सैलरी में बेसिक सैलरी आनी है, DNS अलाउंस ओनली इफ एंटर्स, एंटर मीन्स आई ऑलरेडी टोल्ड इन द माई प्रीवियस वीडियो, एंटर का मतलब होता है दैट विल बी कंसिडर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। बोनस ऑफ एवरी टाइप ग्रेटुशियस है या स्टैट्यूटरी है। कमीशन अगर फिक्स्ड परसेंटेज मिल रही है, टर्नओवर या परफॉर्मेंस के बेसिस पे फिक्स परसेंटेज होनी चाहिए, फ्लक्चुएटिंग नहीं होनी चाहिए, फिक्स्ड वाली लेनी है। ऑल टैक्सेबल अलाउंसेज, जितने भी एम्प्लॉय को टैक्स अलाउंसेज मिल रहे हैं उनका टैक्सेबल पार्ट आएगा। लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द ईयर, जिस साल का RFA हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस साल को इसको लीव इनकैशमेंट मिली है, उसने ली है तो वो आएगी, अदरवाइज नहीं, पहले सालों की नहीं आनी। एरियर एडवांस सैलरी तभी आएगी अगर वो RFA वाले पीरियड की है, नहीं तो नहीं आएगी। सो ले दे के बेसिक पर्पस यही हुआ कि हमने उसकी सारी कैश जो बेनिफिट उसको मिल रहे हैं, मॉनेटरी बेनिफिट जो कैश वाले हैं वो लेने हैं। HRA एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड और अदर पर्क्स हमने नहीं लेने हैं। तो 5, 7.5 10% सैलरी करने से पहले ऐसे सैलरी कैलकुलेट करनी है। फर्निश एकोमोडेशन के लिए सिंपल 10% पर एनम कॉस्ट ऑफ फर्नीचर टू दी RFA। जो RFA की वैल्यू हमारी पीछे हमने कैलकुलेट करी है उसमें हमने 10% ऐड कर देनी है अगर फर्निश जो है एकोमोडेशन ओन्ड बाय है, फर्निश्ड जो फर्नीचर है वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है। अगर किराए पे लेके दे रहा है तो एक्चुअल हायर चार्जेस, इफ इट हायर बाय द एम्प्लॉयर देन एक्चुअल हायर चार्जेस विल बी एडेड टू द RFA वैल्यू। तो ये आ गया टोटल वैल्यू ऑफ RFA टैक्सेबल। अगर इसमें से कुछ पैसे एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट किए जा रहे हैं या कुछ पैसे एम्प्लॉय से लिए जा रहे हैं वो माइनस हो जाएंगे, बिकॉज बेसिक पर्पस क्या है, लॉजिक बिहाइंड इज वी हैव टू कैलकुलेट द टिपिकल बेनिफिट फ्लोइंग फ्रॉम एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई ड्यू टू द एम्प्लॉयमेंट के कारण जो उसको बेनिफिट एम्प्लॉयर से मिल रहा है। तो जितने पैसे एम्प्लॉय से उसने ले लिए तो वो हम उसको माइनस कर देंगे। लेट्स डू द एग्जाम्पल। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, ऑन्ड हाउस है एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई बेस्ड है दिल्ली, सैलरी उसकी 70,000 पर मंथ है, बेसिक DA ऐड करके दिया हुआ है, एंटर वाला है। तो 70,000 इंटू 12 पूरे साल की सैलरी आ गई। तो इसका 10% क्योंकि दिल्ली है तो उसकी पॉपुलेशन बट ऑब्वियस 40 लाख से ज़्यादा ही होगी, 84,000। और अगर ये फर्निश्ड होता, फर्निशमेंट की कॉस्ट है 3 लाख, 3 लाख की कॉस्ट दी मतलब ये फर्नीचर जो है एम्प्लॉयर का है, तो 10% 30,000 आ गया। टैक्सेबल वैल्यू 84,000 प्लस 30,000 1,14,000। और अगर इसमें से कोई अमाउंट एम्प्लॉय से लिया जा रहा है, उसकी सैलरी में से डिडक्ट किया जा रहा है तो वो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स द लीज्ड एकोमोडेशन। अगर इफ इट इज़ हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, सैलरी है 5 लाख, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर है 60,000, तो नए रूल के मुताबिक 10% ऑफ सैलरी है, 10% ऑफ 5,50,000 लोअर होती है। एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर 60,000 और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर 50,000 इज टैक्सेबल। एग्जाम्पशंस एंड एक्सेप्शंस। रिमोट एरिया का RFA एग्जम्प्ट है जी। रिमोट एरिया कौन रिमोट है, कौन सा एरिया हम रिमोट मानेंगे, जो सिटी से 40 किलोमीटर दूर है और उसकी पॉपुलेशन 20,000 से कम है एज पर दी लेटेस्ट सेंसस। होटल स्टेज आर एग्जाम्प्ट अप टू 15 डेज। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को होटल का स्टे प्रोवाइड कर रहा है, ऑफिशियल पर्पस के लिए है, टूर पे गया वहाँ पे होटल का स्टे दिया है, या फिर अकोमोडेशन ना मिलने तक उसको होटल में रहने के लिए दे दिया है, खर्चा सारा जो एक्सपेंस जो है वो एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, तो 15 डेज तक तो एग्जाम्प्ट है, वो हम मानेंगे ऑफिशियल पर्पस है। बियॉन्ड 15 डेज इफ इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉय देन इट विल बी टैक्सेबल।
एक्सेस स्टे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी टैक्सेबल 15 दिन के बाद 24% ऑफ द सैलरी फॉर द स्टे पीरियड, जितना एक्सेस पीरियड होगा 15 दिन के बाद, और एक्चुअल होटल चार्जेस विच एवर इज लोअर विल बी टैक्सेबल। ऑफिशियल रेजिडेंट टू द डिप्लोमैट्स विल बी एग्जम्प्टेड प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया, वो सारे एग्जम्प्ट रहेंगे। और अगर एक एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा अकोमोडेशन मिल रही है एक ही साल में सेम पीरियड के लिए, दो RFA मिल रहे हैं, तो पहले 90 दिनों के लिए तो एक टैक्सेबल है विच इज़ लोअर। 90 दिन के बाद भी अगर वो दोनों ऑक्यूपाई करता है तो दोनों के दोनों टैक्सेबल होंगे। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर कंपनी का ऑफिस है दिल्ली में, एम्प्लॉय वहाँ पे जॉब करता है, उसको दिल्ली में घर दिया गया है अलॉन्ग विद द फैमिली। अब उसके एक ब्रांच MP में भी है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र कर दिया MP में और उसको बोला कि तेरे को वहाँ पे भी घर दे देंगे। MP में शिफ्ट हो गया, घर मिल गया। अब एम्प्लॉय बोला कि मैं अपनी फैमिली को अभी नहीं लेके जा सकता, बच्चों के स्कूल है या हाउएवर कोई और प्रॉब्लम है, तो एम्प्लॉयर कहते हैं चलो ठीक है तू 2 घर ले ले। तो अब एक घर उसका दिल्ली में है, वो भी एम्प्लॉयर ने दिया है, एक घर उसको MP में मिल गया है, वो भी एम्प्लॉयर ने दिया है, 2 RFA मिल रहे हैं ना। तो अगर तो 90 दिन तक वो दोनों घर यूज़ करता है तो दोनों में से एक टैक्सेबल होगा, दोनों की वैल्यू निकाली जाएगी विच एवर इज़ लोअर, जो भी रूल लगता है। अगर 90 दिन के बाद भी वो दोनों घर लेता है तो उसको दोनों की वैल्यू के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, तो दोनों की वैल्यू टैक्सेबल होगी। समरी, RFA एक टैक्सेबल परक्विजिट है। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए रूल थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं, हमने डिस्कस किया है। और वैल्यूएशन जो है सिटी, सैलरी और फर्निश्ड ऑनरशिप के ऊपर बेस्ड होती है। और RFA इज़ अ परफेक्टली taxable perquisite, it is taxable for everyone and it is included in salary. So thank you everyone for watching, and if you found this useful, do not forget to like, share and subscribe. Do subscribe the channel so that you get the updates for the upcoming content. Stay updated with more such content. Thank you everyone.